Yes. Good afternoon, everyone. Thank you so much. Salja. Salja, why you want this job? Sir, I feel that I have interest in this particular Loud, profession. please. I have interest in this particular profession, and I feel that I have aptitude for this also. My family is also having a teaching background, so I feel that it will be comfortable for me to catering the needs of small children and will be a part of their whole journey. You have experience of teaching of the small children? No, sir. Currently, I'm not having any experience, but yeah, I have experience teaching children during my internship, which was of 7 months during the course. Okay. Salja, tell about KVS in a little bit. Sir, Kendra Vidyalaya Sangathan was specifically established for the transferable central employees, and it established in on 15th December 1963, and it has its headquarters in Delhi. It has five ZIETs in Gwalior, Mysore, Bhubaneswar, Chandigarh, and Mumbai. And currently, there are 1254 schools of KVS, including three schools in foreign. First in Kathmandu, second in Tehran, and third in Moscow, Russia. Uh, any demo? Yes, ma'am. Okay. Child psychology. Child psychology demo You have to Demo teach paper. child psychology. to class 5. For understanding about the child. Any ideas about that? On the basis of the CDP, you can understand about the level of child and you could start the teaching. So, is there any particular topic, or I just have It's to? just depend on you. How could you manage this? Okay. Your choice. I would like to teach EVS if you ask mine. Then, Mark underscore. Man. good morning, students. How are you all? And Good? Yes. Okay. आप सबने ब्रेकफास्ट किया? ओके सो पहले तो मुझे बता दीजिए आज डेट क्या है? 28th October 2023. Okay. In which class we are? fifth. Okay. Good. And which period is this? First. Okay. Very intelligent class it is. Now, see. अच्छा आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में एक बहुत ही अच्छा पहले तो मैं कुछ साउंड्स आपको बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि कौन से एनिमल की है, ठीक है? ओके सो which word? And Okay, now next one. Cow, 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 crow. Yes, Suhana answered crow. Please clap for her. Okay, sit down. Now, so she said crow. तो crow. तो आज हम crow के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी क्या है? एक होती है स्पैरो और एक होता है क्रो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक क्रो है और एक स्पैरो है, तो वो दोनों ना एक ट्री के ब्रांच पे बैठे होते हैं, ठीक है? तो उनके बीच में एक डील होती है. क्रो सेज कि स्पैरो इफ यू lay egg first I'll eat it, and sparrow says crow that if you lay egg first I'll have it. तो उनमें एक डील होती है. Now sparrow lays egg first. Now crow is very excited कि अच्छा है आज तो मुझे खाना मिलेगा. तो स्पैरो कहती है कि if you want to have my eggs you first need to wash your beak. All right, now ठीक है. क्रो कहता है ठीक है, ये तो अच्छा, मैं जाके अभी आ जाता हूँ. अच्छा, अब क्रो जाता है एक रिवर में कि मुझे अपनी जो बीक है वो वॉश करनी है विद कोल्ड वाटर. आई वांट टू वॉश माय बीक. ईटिंग द एग इज व्हाट आई सीक.
ऑलराइट। अच्छा, तो रिवर कहती है ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें पॉट भी तो लाना पड़ेगा। जब तुम पॉट नहीं लाओगे तब तक मैं उसमें पानी कैसे भरोगे और फिर अपनी बीक को वॉश कैसे करोगे? तो क्रो कहता है कि अच्छा पॉट, वो कहाँ पर मिलेगा मुझे? तो फिर रिवर कहती है उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पॉटर के पास। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो पॉट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेकिंग पॉट्स। ओके, नाउ अब वो जाता है पॉटर के पास। पॉटर कहता है कि ठीक है, अब क्रो जाता है, कहता है कि आप मुझे एक पॉट बना के दे दीजिए, क्योंकि मुझे ना अपनी जो बीक है वो वॉश करनी है ताकि मैं एग ले सकूं। ठीक है, वो कहता है ठीक है, वो तो मैं दे दूंगा, बट उससे पहले मुझे ये क्ले चाहिए, तो तुम क्ले तो लाओ पहले। तो वो क्या करता है, तो वो कहता है क्ले कहाँ से लाऊं मैं? तो वो कहता है तुम एक काम करो, क्ले पिट के पास जाओ। ठीक है, तो वो क्ले पिट के पास जाता है। तो सबसे पहले वो किसके पास गया? पॉटर के पास। फिर वो किसके पास गया? क्ले पिट के पास, है ना? अच्छा, वो क्ले पिट के पास पहुंच गया। क्ले पिट कहता है कि क्रो जाता है, कहता है आप मुझे सॉइल दे दीजिए, मुझे उसे पॉटर को देना है, पॉटर उससे पॉट बनाएगा और मुझे दे देगा। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें क्ले चाहिए, बट क्ले के लिए तो सॉइल चाहिए, वो तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि ठीक है, मतलब अब मुझे सॉइल लानी पड़ेगी। कहता है हाँ, मुझे सॉइल को डिग करने के लिए ट्रॉवल चाहिए, तो तुम ब्लैक स्मिथ से जाके ट्रॉवल लेके आओ। अब वो जाते हैं ब्लैक स्मिथ के पास। अब ब्लैक स्मिथ के पास गया तो उसने कहा कि मुझे ट्रॉवल दे दो, क्ले पिट ने कहा है कि उसे सॉइल डिग करके मुझे देनी है। अब उसके बाद वो उसके पास जाता है, फिर तो अब ब्लैक स्मिथ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ट्रॉवल दे दूंगा। अब ब्लैक स्मिथ उसे ट्रॉवल दे देता है। अब वो किसके पास गया था? ब्लैक स्मिथ के पास। ठीक है, अब वहां से उसे ट्रॉवल मिल जाता है। अब ट्रॉवल मिलने के बाद वो वापस स्पैरो के पास जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि अब मैंने अपनी बीक जो है वो वॉश कर ली है, तो अब तुम मुझे एग्स दे दो। और फिर पता चलता है उससे पहले स्पैरो और जो एग होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं और दे फ्लाइड अवे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने आपको क्ले लाने के लिए कहा था, कल कहा था सबको, ठीक है, आप क्ले लाइन। जो नहीं लाया है इट्स ओके, अभी सब बच्चे थोड़ा थोड़ा क्ले लेंगे और उस बच्चे को देंगे, ठीक है, अभी के लिए, बट अगली बार से रिमेम्बर कि आपको क्ले लानी है। ठीक है, अब सब बच्चे क्ले हैं सबके पास, वेरी गुड। मैम, अब मैम के पास भी थोड़ी सी क्ले है, मैम इससे पॉट बनाएंगे और आप सब भी वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, ओके। तो कैसे उसे जाए? अच्छी सर। तो जैसे कि आपने आपका बायोडाटा में दिया है कि आपने केवीएस में पहले भी काम किया है। सर मैंने काम नहीं किया, बट इससे पहले मैंने 2 जगह इंटरव्यूज दिए थे यस, फॉर प्रैक्टिस, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई डिड नॉट जॉइन। यस। तो आप केवीएस और गवर्नमेंट स्कूल में कोई दो डिफरेंस बताओगे? हाँ जी सर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस, बिकॉज वो मैं पर्सनली बता सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन स्टडीड इन एयरफोर्स स्कूल विच इज़ मोर और लेस, केवीएस एंड एयरफोर्स स्कूल्स हैव काइंड ऑफ सेम एम्बियंस। तो सर को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर ऑल इज मस्ट देयर। केंद्र प्राइमरी लेवल पर। हाँ जी सर, को करिकुलर एक्टिविटीज में ये पूरी कोशिश की जाती है कि अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ना कैसे करके उन सारे स्टूडेंट्स को हम को करिकुलर एक्टिविटीज में जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है उनमें लें। अगर कोई डांस में तो वो डांस में जाएगा, नहीं तो पूरी क्लास थोड़ा ड्रामा में, सिंगिंग में, तो वो एक को करिकुलर एक्टिविटीज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा सर, एक कल्चरल जो फ्रेमवर्क, जो कल्चरल ट्रेडिशनल मल्टीलिंगुअलिज्म जो एक फ्रेमवर्क है जो केवीएस फॉलो करता है, वो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर रीजन से बच्चे आ रहे हैं और केवीएस जो है वो बहुत लोगों की नीड्स को केटर कर रहा है। दीज आर द टू डिफरेंसेस आई फील। ये शैलजा, जो केवी का प्रोसेस है और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रोसेस है, जी इनमें कोई माइनर डिफरेंसेस बताइए मुझे, इनके जो रूल रेगुलेशन आगे से जो सर्कुलर आता है उनके अंदर, एक्टिविटीज का, स्टूडेंट्स का। मैम एक्चुअली आई थिंक जो एक, क्योंकि केवी जो एक इंस्टीट्यूशन है, जो फर्म है, वो सेंट्रल फर्म है,
तो आगे से जो भी सर्कुलर या कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी नोटिस आता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी केवीज होते हैं, आप चाहे जम्मू कश्मीर का केवी ले लीजिए, चाहे कन्याकुमारी का, वो एक्टिविटी जहाँ भी फॉलो होगी वो सेम टाइम पे हर जगह फॉलो होगी। और एक्टिविटी फॉलो होने के बाद भी उन सारे टीचर्स की एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिससे वो क्या आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम थे और क्या एक फाइनल आउटकम रहा, उन सब पे डिस्कशन होता है। और क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स के जो स्कूल्स होते हैं उसमें थोड़ा कम पॉसिबल होता है, बिकॉज वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट नेचर आ जाता है, तो ये एक मुझे लगता है डिफरेंस सेकंड थिंग, जो इसका प्रैक्टिकल वर्क होता है और जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है? है। मैम, at the level of students or you are talking about the recruitments and all? वर्किंग, uh, स्टाफ वर्किंग, I'm sorry ma'am, I didn't get the question correctly. जो आपका प्रैक्टिकली जो आप वर्क करते हो और जो आप रिटर्न में वर्क के जो सबमिशन करते हो, इनका जो प्रोसेस है, इनमें क्या डिफरेंसेस है मैम केवीएस, अबाउट के? हाँ जी मैम, केवीएस में अभी जो है वो बहुत कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो जो वर्क बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रहता था टीचर्स के लिए, बहुत ज़्यादा पहले जो बर्डन रहता था, वो मोर और लेस वो प्लानर्स जो हैं अब डिजिटल हो गए हैं। स्पेशली अटेंडेंस भी आजकल डिजिटल मोड पे फिल की जाती है, तो वो एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है केवी में और बाकी स्कूल्स में, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में। जैसे दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो मेडिकल चेकअप है स्टूडेंट्स का, वो कुछ अलग प्रोसेस है और सेंटर स्कूल में कुछ अलग प्रोसेस है। तो क्या इसमें आपको इसके बारे में क्या कुछ पता है? मैम रियली सॉरी, आई विल रीड ऑन दैट। ओके। शर्चा, जैसे आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया और भारत के बाहर भी ये स्कूल्स हैं, तो कैसे आप उस चीज को, मतलब आपका ट्रांसफर कहीं और बाहर होता है तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे? मैम आई थिंक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम टू मी। माय सोचा है ऐसा हाँ आपने जी, हाँ कभी? जी, बिल्कुल मैम। दैट्स कैसे? व्हाई आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट दिस जॉब। मैम मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से, आई वुड से दे आर नॉट दैट ऑर्थोडॉक्स, सो दे विल अलाउ मी। एंड रही बात एक मतलब ये एक अलग परसेप्शन था। एक दूसरा पॉइंट ये है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग होती है। तो उससे पहले अगर रही बात लैंग्वेज की, तो KVS हैज़ दिस ट्रिमेंडस कल्चर ऑफ इट्स इन सर्विस ट्रेनिंग मैम। तो उस इन सर्विस ट्रेनिंग में लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वो हमें कुछ जो बेसिक लैंग्वेज है उसका थोड़ी नॉलेज देते हैं। बाकी लैंग्वेज इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, तो वो आगे चलता रहेगा। बाकी मैम मुझे आई डोंट थिंक सो दैट आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी रिजिड टू एनवायरनमेंट, सो आई फील दैट आई विल बी अकोमोडेटिंग इन एनी कंडीशन। आपने ऐसा सोचा है कुछ कि मैं जाने के बाद कुछ ऐसा चेंजेस होना चाहिए स्कूल्स में, है ना, इम्प्रूवमेंट टाइप का कुछ यस मैम, मेरा, बच्चों से कनेक्ट करने के हाँ जी लिए? मैम, आई फील दैट this particular thing called group work or teamwork, which is somewhere I feel that it's on paper. I'm not saying any particular teacher or institution is not following that, but somehow with a strength of 30 and with a limited time, with a limited period, थोड़ा सा टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ग्रुप वर्क एक्टिविटीज इनको कंडक्ट कराएं। तो मैं कोशिश करूंगी कि कैसे ना कैसे टीम वर्क करके मैं वो एडजस्ट करके, हाँ जी, वो मेंटेन। अच्छा, और थोड़ा जैसे देखें कि अभी G20 हुआ है इंडिया जी में, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आप बताना चाहेंगे? जी मैम, मैम G20 was first held in November 2008 in Washington DC. There are 19 countries right now, and one is European Union. And the last country which was added was African Union. African. Yeah. So presently, just in 2022, it was held in Delhi. Before that, it was held in Indonesia, and in next year, it will be held in Brazil. संजय, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर। जैसे आपने एयरफोर्स में इंटरव्यू दे रखा है जी और अब केंद्रीय विद्यालय में दोगे, आपको पता है कि दोनों ट्रांसफरेबल नौकरी है, तो ऐसा क्यों चॉइस कर रहे हो आप इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए में? आप क्या रीजन है आपका? So first of all, what I said that I'm a person who can easily accommodate in any environment. So जो basic nature है KV का, उससे तो मुझे problem नहीं होगी, I feel. And KV has a tremendous culture, what I said, of in-service training. So it's just not about, it is thinking about the students, it's also thinking about the teachers and their technical and professional knowledge also. तो मुझे लगता है कि केंद्र, being a part of केंद्र विद्यालय, मेरी personal growth भी होगी।
That's why. Thank you. Thank you. शैलजा, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप केवी में सिलेक्ट हो जाते हो, आपके पास हर टाइप के बच्चे होंगे, CWSN को कैसे हैंडल करेंगे? मैम उनके लिए स्पेशली जब हमें कोर्स करवाया जाता है आजकल, तो उसमें एक स्पेशल सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, जिससे उसकी हमें पहले से नॉलेज रहती है। बाकी क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, बट मैम उनको मैं कोशिश करूँगी कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक सब्जेक्ट होता है जिसमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा फैसिनेट करती है। हो सकता है कुछ बच्चों को म्यूज़िक हो, कुछ बच्चों को पेंटिंग हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ों को वैसे ही अप्रोच किया जाए उनके लिए जो चीज़ उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है, सो दैट वुड बी ईजियर प्रोसेस फॉर देम टू अक्नॉलेज द सेम। कुछ बच्चे फिजिकली चैलेंज होते हैं, कुछ मेंटली चैलेंज होते हैं, तो आप उनको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि मुझे कौन से बच्चे किस में सेपरेट रखने हैं, उनको साथ पढ़ाना है या उनको सेपरेटली उनको टॉट करना है? तो ये थोड़ा सा मुझे आप मैम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दैट वी हैव, और इंक्लूसिव एजुकेशन में सेपरेशन वर्ड प्रोहिबिटेड है, तो सेपरेट करने का तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, ऐड ऑन कर सकते हैं उनके लिए चीज़ें, जैसे कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज है फॉर एग्जांपल, उसे आगे बिठाया है, उसको थोड़ा रिटन वर्क है कंपैरेटिवली और उसे कम दिया, और थोड़ा सा एक दूसरी तरह से ज़्यादा वर्बली ज़्यादा उसको एंगेज रखा कि आप रोल प्ले है तो आप आएंगे, आप बोलेंगे, इस हिसाब से। बाकी इफ़ वी गो इनटू लर्निंग डिसेबिलिटीज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मैम उसके लिए अगर मुझे क्लास में मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी, तो देयर आर स्पेशल एजुकेटर्स इन स्कूल, उनकी मैं एडिशनल हेल्प लूंगी, वरना पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दे सकूँ। अदरवाइज स्पेशल एजुकेटर अगर आपके पास नहीं हुए और आपको ही उनको हैंडल करना हुआ, फिर आप क्या करेंगे? मैम उनके लिए स्पेशली उनके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो कम्युनि अगर फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड हैज़ माइल्ड ऑटिज्म, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी, वहाँ पर जो एक बैरियर है वो दैट इज़ कम्युनिकेशन टू हिम और हर, तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाऊँ ताकि वो उसमें इंगेज हो सके, ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ उसकी इम्प्रूव हो सके। तो मैम वो सब्जेक्टिव टू चाइल्ड है, तो मैं मोर ऑन मोर एक्टिविटीज़ पे और ग्रुप वर्क पे काम करना चाहूँगी। अच्छा, आपने अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मेरा क्वेश्चन उसी में से ही है, आपने डस्टर का यूज क्यों नहीं किया? आपने मार्कर से टेप को चेंज किया, लेकिन आपने डस्टर यूज नहीं किया। Ma'am, that was my fault. Really sorry for that. आपको पता है इस पे आपके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? So yeah, ओके, tell about motto of KBS. So it's Tattvam Pushan Apavrinu, which means uncover the knowledge. An establishment of KBS. 15 December 1963. What was the reason behind the establishment of KBS? To cater the needs of children of transferable central employees. Do you have idea about that the KBS establishment is the individual body or it is related to the educational ministry? Sir, KVS is an autonomous body, but still it comes under the all the provision of MOE. So definitely the president would be the Mr. Dharmendra Prasad, or currently he is the education officer. But जो भी minister MOE के अंदर जो भी provisions होंगे, KVS will be applying the same. So NCRT is different platform or KBS is a different platform? What do you think? Yes, sir. KVS is a Kendriya Vidyalaya Sangathan is providing an autonomous structure to education. NCRT is taking leads in books and exams and teachers training. So they both have different And departments. CBSE? CBSE has the authority to conduct exams. So KBS and CBSE there is a difference. Definitely, sir. CBSE is to conduct examination at central level all over India and outside even. And KVS has its autonomous body which works under NCRT, CBS, and MOE, but has its special functioning and system which is not subjected to any government thing or something. You just given in your biodata for removing the stress you dancing. For removing the stress you just want to dance and you want to sing a song. What do you think about that? Dance is the one way of the reducing the stress.
No, sir, I feel that this is a one way of my like this is my personal viewpoint over dance, that I feel it that मैं अपना stress release कर सकती हूँ डांस करके, but it's subjective to each and everyone. It could be painting or singing to anyone else. It's a dance to me. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ किया था शैलजा कि जो केवीएस का वर्क होता है, एक प्रैक्टिकल वर्क होता है जो बच्चों को हम हैंडल करके पढ़ाते हैं और जैसा भी उनके साथ में ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री वर्क, उनका जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो जाता है, उनमें कुछ डिफरेंसेस आपको लगा, कुछ आइडिया, एनी आइडिया? No, ma'am, sorry, I नो have आइडिया। not been in any school, so yeah, I will not be able to आपने answer केवी this. का इंटरव्यू क्लियर किया पहले? No, ma'am. एनी एक्सपीरियंस? नो No. एक्सपीरियंस? ओके सर। शंशा, टीचर की ड्यूटी क्या होती है? अगर What's देखें about it? टीचर की ड्यूटी के बारे में अगर हम देखें, Ma'am, I would say the first and foremost duty of a teacher is to safeguard the child, or to look over the safety of the child first, because teaching learning process that comes definitely, but safety is the foremost thing. The second is his or her learning in an interesting way. It should not be a burden to child कि हम किसी चीज को उन पे वी आर फोर्सिबली कि तुम्हें करना है, रिटर्न वर्क 10 पेज लिखने हैं, तो we used to write it 10 pages of dictation, so that was burdensome for us somewhere. तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए स्टडीज बर्डन ना बन के रह जाएं. इट शुड बी मोर ऑन साइड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ताकि वो वैसे एक डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा यस मैम. इम्पोर्टेंस रखता बट है। मैम मुझे लगता है कि डिसिप्लिन तब क्लास में मेंटेन नहीं होता जब बच्चे एंगेज नहीं होते. अगर एंगेज होंगे तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ डिसिप्लिन, मतलब कुछ फॉल्ट होगा डिसिप्लिन. जैसे जैसे केवीएस में आपको मान लो क्लास फर्स्ट मिल जाती है पहली बार, जी. तो आप उनमें उन बच्चों में कौन सा करिकुलम ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्लास फर्स्ट के लिए? आपको क्लास टीचर बना दिया फर्स्ट का, तो उन बच्चों को कौन सा पाठ्यक्रम यूज़ करोगे आप, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें क्लास वन के लिए? सर क्लास वन के लिए अभी अभी एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2022 किया है, दैट इज़ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज. तो डेफिनेटली सिंपली वो अप्लाई होगा. दैट इंडिकेट्स कि हमें जो लर्निंग है दैट हैज़ टू बी जॉयफुल. एंड क्लास वन के लिए इट शुड नॉट बी मोर ऑन अ राइटिंग वर्क, ये भी एक चीज़ है. तो आई विल स्टार्ट माई डे एंड माई क्लास विद अ पोम, so that वो एक rhythm, और class 1 के बच्चे they are not there to listen to us or in a lecture method, so definitely I'll start with the poem. आपने केवीएस में लिखा है कि एंकरिंग जी किया है आपने. जी. तो एंकरिंग में एक पॉइंट जो होता है अट्रैक्ट टू द पब्लिक, अट्रैक्ट टू द स्टूडेंट्स. तो इनिशियल quotations by which way you attract the public? सर एक्चुअली मैंने एक स्कूल में इंटर्नशिप की थी, व्हाट आई सेड. तो वहाँ पर एक इवेंट था दैट्स रीडिंग मेला, तो वहाँ पर मैंने एंकरिंग की थी. तो जो मेरी को होस्ट थी वो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो ऑल्दो इट वाज अ बॉलीवुड लाइन, बट स्टिल वी डिड टू मैनेज समहाउ. तो मैंने तो उन्होंने जब तो कुछ ऐसा रीडिंग मेला पे बात हो रही थी, तो बुक्स पढ़ने पे, तो आई सेड टू हर कि तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है. तो शी सेड कि कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा अगर बुक्स नहीं पढ़ोगी तो इस तरह से वो लाइन थी जो बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी. Good. कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हो? मैम एक्सप्लोरिंग में ज़्यादा है. कुकिंग भी कर लेती हूँ बट मैं. किस टाइप के लिए? मैम मुझे थोड़ा सा इटालियन पसंद है, तो मैं वैसे ही करती हूँ. हाँ जी. Okay, so meet you again. थैंक यू.